अगर किसी भी रेजिडेंट को कभी एक्सट्रीम ख्याल आ रहे हो, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? I would just go beyond mental health and say this. जैसे सुइसाइड, तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? उनको लगता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास ना बड़ी बीमारी में जाया जाएगा. एंजाइटी को कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं? Finding out why anxiety is happening and secondly therapy. अब एग्जाम के अंदर अगर मान लो एंजाइटी फिर हैवी हो गई, फिर क्या करना है? बहुत अजीब लगती है सुनने में बात, going to the washroom. That 50% of the medicos today are going to depression. So yes, there are a lot of studies being going on according to this. What is the difference between a psychologist and a psychiatrist? How important is for mental health? Especially orgasm. Like a lot of people come and ask कि masturbation addictive कब है? एक साइकियाट्रिस्ट कितना कमा लेते हैं? Hey guys, welcome to the नचिकेत भाटिया शो. आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा अलग है. ये अलग क्यों है? क्योंकि ये आज के सबसे बड़े मुद्दे को एड्रेस करेगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन मेडिकोस. मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर मेंटल हेल्थ के बारे में हमें और बताइए. तो मैंने सोचा क्यों ना एक न्यू एज साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाए शो के अंदर, जिन्होंने रिसेंटली अपनी रेजिडेंसी पूरी करी है. उन्होंने एक यंग एज का स्ट्रगल देखा है, उन्होंने रेजिडेंसी के प्रॉब्लम्स देखे हैं, और अभी रिसेंटली शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन LLRM मेडिकल कॉलेज. तो उन्होंने सारी रेजिडेंसीज यानी कि साइकियाट्री को छोड़कर भी मेडिसिन, सर्जरी, OBG, इन सब की प्रॉब्लम्स को बहुत क्लोजली देखा है, ऑब्जर्व किया है, एंड शी हैज़ सम ग्रेट ओपिनियंस ऑन दैट. तो आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर राशि अग्रवाल. शी इज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन LLRM मेडिकल कॉलेज, अ न्यू एज साइकियाट्रिस्ट, और वो आज हम सारी इश्यूज़ के सोल्यूशन बताने वाली हैं. सो वेलकम डॉक्टर राशि. I thank you so much for having me. सो डॉक्टर राशि, एज अ साइकियाट्रिस्ट आप डेली इश्यूज सुन रहे होंगे कि दैट देयर इज अ राइजिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन आवर मेडिकोस. अगर किसी भी रेजिडेंट को कभी ऐसे एक्सट्रीम ख्याल आ रहे हो, तो उस टाइम पे व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप दे शुड टेक? I think the first step here would be talking to someone. If anybody has ever been into a medical college, just go to their emergency ward once. You will see the person who's running around, who is the most, I would say, unkept or not in the very right state of like appearance per se. That would be a first year resident. It is completely unimaginable for a person outside the community to come inside and see their actual state. We have been there day in and day out, and the condition of residents, especially first years, I would say is below, really below par. They have so much of work, they are so overwhelmed, they are extremely, I would say, overworked. So hence these things tend to catch up with you. Because of this immense stress, this everyday expectations out of them, number of patient load, academic load, and that too then if at all they are working in a very toxic department, or continuous screaming, shouting, or being let down by other people, this all can cumulatively come together and surely have an effect on their physical health also. I would just go beyond mental health and say this. Being in a continuous state of stress actually changes your brain. उनको उस टाइम पे सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए? ये इतने टाइम से चला आ रहा है that everybody tells अपने नीचे वाले रेजिडेंट को ये पहले से ऐसे ही होता है. हमारे साथ भी यही हुआ था और हमारे साथ तो और बुरा होता था. तो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ये कोई बात नहीं है. तो ये वाली मैंटेलिटी ऑल्सो हैज़ टू चेंज समवेयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं डेली लाइफ इशूज से एक चीज़ को इससे रिलेट करूँगी. जस्ट बिकॉज डाउरी हैज़ बिन ऑन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डज नॉट मेक इट ओके. Similarly, when we talk about this, just because some kind of trauma was being inflicted or some kind of unnatural behavior or unruly behavior was being passed down through generations in residencies does not make it okay. You and I would have frequently heard senior doctors and people in colleges saying, हमारे टाइम पे तो इससे बहुत बुरा होता था, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्या तुम इतना स्ट्रेस भी नहीं झेल सकते? जस्ट बिकॉज आपके टाइम पे मे बी और ज़्यादा फिजिकल वायलेंस भी, एंड वी नो इट्स अ रियलिटी दैट यूज टू हैपन. अगर इतना वो होता था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज कम हो रहा है या थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ गया तो वो सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेंटालिटी ऊपर से ही चेंज होनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके का जो ये बिहेवियर है कि दूसरे पे हम इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं या अपना स्ट्रेस निकाल सकते हैं या
उनको उस तरीके से ह्यूमिलिएट करा जा सकता है. सबसे पहले तो ये मेंटालिटी चेंज होएगी बिकॉज द चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम द टॉप. अ सिंगल रेजिडेंट, अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट कैन नॉट डू मच अनफॉर्चुनेटली इन दिस सिचुएशन. जितने वो ओवरवर्कड हैं, जितना उनके पास काम है या अकेडमिक प्रेशर है, प्रूव करने वाली जो एक बात होती है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं तब वो एक सीट पे आते हैं तो उनके ऊपर ये प्रेशर और बढ़ जाता है कि इतनी मेहनत करके मैं इस सीट तक आया हूँ तो अब मैं यहाँ से अपने आप को और प्रूव करके दिखाऊंगा. एंड दैट गेट्स अ लिटिल टफ फॉर देम कि अब इस सिचुएशन में इतनी ह्यूमिलिएशन और इतने स्ट्रेस में अब मैं एक्सेल कैसे करूं. तो पहली चीज़ हमेशा यही होगी कि फाइंड अ नीश ऑफ पीपल. घर पे, बाहर, कहीं पे भी एक आप पे ना एक वेंटिंग आउट एरिया होना चाहिए. फ्रेंड्स, फैमिली और को रेजिडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, बट एक ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास आप जाके बोलो कि भाई मेरे से अब नहीं हो रहा या मैं बहुत परेशान हूँ. एक वेंट आउट से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. आजकल के जो रेजिडेंट्स हैं, मैंने बहुत लोगों से बात करी और हर बार ये था कि जब वो कोशिश भी करते हैं ना किसी को बताने की तो शायद लोग सुनते भी नहीं हैं. लोग मजाक बनाते हैं. जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा ना कि दैट इतना भी स्ट्रेस आपसे झेला नहीं जा रहा क्या. तो वो मेंटालिटी ख़त्म करने के लिए शायद हम, हमारे दोस्त, हमारी कम्युनिटी क्या कर सकती है. First of all, this what we are doing about it. Talking about is the main thing. I'll keep on relating to everyday issues here कि इतना नॉर्मलसी में आना चाहिए. Nobody is scared about talking about diabetes, right? सब घर में कोई चाय पीता है, आपके यहाँ कोई आता जाता है, आप क्या बोलते हो कि चीनी मत डालना, मेरे को शुगर है, अरे मुझे भी है, मुझे भी है, एंड सब उसे कितनी लाइटली ले लेते हैं. हमें इस तरीके से ही ये करना है. जब तक हम उस लेवल को रीच नहीं कर लेते कि हम मेंटल हेल्थ की इस तरह से बात कर सकते हैं, तब तक वो जो स्टिग्मा और जो मजाक वाली चीज़ है वो रहती है. एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस कि जो खुल के बात करना भी चाहता है ना, उतना इनफ नहीं है. सुनने वाले को भी तो रेडी होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे कि भाई इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है. इवन इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड अ सोल्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप सुनो तो सही, सोल्यूशन तो उसके बाद आएगा. So awareness will be the answer to mental health issues in the future. आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे, आई एम श्योर दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स. तो इस वक्त आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आते हैं, इफ़ आई मे आस्क. Overall per se, I think it would be very difficult to pinpoint कि ज़्यादा पेशेंट किस तरीके के होते हैं. But seeing the जैसे prevalence of anxiety is maximum among all the mental health issues. So people would not generally come to us and say कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है. They would come to us with vague symptoms कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे घबराहट होती है, मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं परेशान रहता हूँ. Then it is up to the clinician, up to the mental health professional to come to a diagnosis. So yes, I think it is mostly anxiety and depression, but also the substance use disorder, I mean the addiction, that is not very far behind from that. तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक साइकियाट्रिस्ट के पास हमारे पास आओ तो आप पहली बार में एक डायग्नोसिस वापस लेके जाओ. कई बार जैसे इंटरनेट पे बहुत लोग देखते हैं या इधर उधर सुनते हैं तो हमारे पास आके डायरेक्टली वो बात बोलते हैं मुझे क्या हुआ है. तो वी टॉक अबाउट इट एंड वी से कि लेट्स वर्क ऑन द सिम्टम फर्स्ट. इट इज़ नॉट अ वेरी क्लियर कट आंसर. मैं ऐसे नहीं कर सकती कि एक ब्लड टेस्ट कराऊँ और मैं आपको ये नहीं बोल सकती आपको इतना डिप्रेशन है या इतनी एंग्जाइटी है. सो यूजुअली आई थिंक डायग्नोसिस कम्स ऑन लेटर ऑन. शुरू में हमारा जो काम रहता है कि आपकी लाइफ, आपकी फंक्शनैलिटी बेटर कर दें हम किसी भी तरीके से, गो बैक टू अ वेरी फुल फंक्शनिंग लाइफ स्टाइल. या बट आई थिंक अ शॉर्ट आंसर वुड बी एंग्जाइटी. तो अगर आज एक किसी भी इंडिविजुअल को अपने आप को एक होम डायग्नोस करना पड़े कि दैट इफ़ आई एम गोइंग थ्रू इवन माइल्ड डिप्रेशन, तो उसके लिए क्या सिम्टम्स देखने चाहिए. एक डिप्रेशन ना बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इट्स बिकम अ वेरी हाउस होल्ड टर्म. यस, आई थिंक देयर इज़ अ वेरी प्रोज एंड कॉन्स टू इट, बोथ ऑफ इट. तो अच्छी बात है कि लोगों को पता लग रहा है कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ है एंड दे वुड वांट टू गेट डायग्नोस्ड फॉर दैट. बट प्रॉब्लम ये है कि अ लॉट ऑफ टेस्ट ओवर द इंटरनेट और बहुत रैंडम जो साइट्स पे आपको मिल जाएंगे, दे आर नॉट डायग्नोस्टिक. एज सच कोई टेस्ट नहीं है जो डायग्नोस करके बता सकता है आपको कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं है. But I would like to tell a few points. If you have persistently sad or irritable mood, जो 2 weeks के अराउंड है, and that is most of the time. ऐसा नहीं कि एक दिन थोड़े परेशान थे, अगले दिन थोड़े ठीक हो गए. Moreover, it is affecting your daily functioning, your productivity, your relationship with family, friends, आपकी sleep, आपकी appetite. मतलब उस मूड की वजह से आपकी बाकी लाइफ भी अगर अफेक्ट हो रही है, that to at least 2 weeks. तो हम फिर भी कह सकते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन है. बट स्टिल आई वुड से कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, लाइक देयर इज़ अ टेस्ट हैमडी करके होता है जो हमारे में एक टेस्ट है, वी यूज़ इट मोर फॉर प्रोग्नोसिस
और जजिंग की क्लिनिकली कितना इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे कोई डायग्नोसिस के लिए टेस्ट नहीं है हमारे पास कि आई कैन गिव योर पेपर, यू कैन फिल इट आउट एंड लाइक ओके यू आर डिप्रेस. सो इतना ईजी नहीं है. यू हैव टू सिट विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड टॉक अबाउट इट. आजकल अगर देखा जाए तो मैं जो आपकी सारी बात करूँ तो रेजिडेंट्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. ओके, ओवर वर्किंग है, आर रेजिडेंट्स आर हेविली अंडरपेड, हेविली ओवरवर्कड, एंड स्ट्रेस तो शायद उनकी लाइफ का एक बहुत मेजर हिस्सा बन चुका है. तो किसी भी रेजिडेंट को अगर एक एक्सट्रीम ख्याल आ रहे हैं जैसे सुइसाइड, एंड आई मीन आई होप कभी ना आए, और अगर ख्याल आ रहा है तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? Sadly, this is the reality, and I cannot count the number of postgraduate residents I have seen in the clinical OPD who have come with the similar thoughts. So I'm glad at least medical colleges they have that kind of hope कि there is this department, we can go there and they might help us. तो वो आते इसी उम्मीद से हैं. So I think first and foremost जो मैं बार बार बोलूँगी, talking to your friends, and if it's fine if nobody is understanding you, come to a mental health professional. We are there to help you. There is absolutely no judgment, and you will get the right treatment. And the accessibility is easier. If you have a psychiatry department in your own medical college, कई बार ये भी होता है दूसरे कॉलेज के बच्चे आते हैं कि हम अपने कॉलेज में जाएंगे तो ये वाली स्टिग्मा भी उनको रहता है कि ये वाली बात और फैल जाएगी. तो ऐसा भी होता है कि हम अपने यहाँ नहीं दिखाएंगे, अदरवाइज ये वाले टीचर हमारे टीचर को बता देंगे. स्टिल गो टू द सिकैट्री डिपार्टमेंट. अगर आपको लगता है प्रोफेसर से बात नहीं कर सकता, वहाँ के एसआर से बात करो. उससे भी नहीं कर सकते, वहाँ के जेआर से बात करो. दे माइट एस्केलेट द प्रॉब्लम ऊपर, तो हेल्प ज़रूर मिलेगी. तो आई थिंक सीकिंग हेल्प एंड फाइंडिंग पीपल हु कैन हेल्प यू सीक हेल्प, ये एक प्राइम फैक्टर यहाँ रहेगा. बट लेकिन आज भी इतना स्टिग्मा है ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके कि शायद लोग अगर जाना भी चाहे ना तो उनको अंदर से डर लगता है. उस डर को दूर भगाने का कोई तरीका है? स्टिग्मा है, ये बहुत वेल नोन फैक्ट है. आई कीप ऑन सेइंग दिस अगैन एंड अगैन. Only field where the illness, the doctor and the patient, everybody is stigmatized. Even we as doctors in psychiatry are stigmatized of being this paglo ka doctor, which is very a word that's commonly used. So change एक दिन में तो नहीं आएगा. अवेयरनेस बढ़ रही है, तभी मैं कहती हूँ हमारे पास आते हैं लोग एंड बाय विल आते हैं. व्हेन वी आस्क देम आज क्यों आना हुआ, कुछ तो कल हुआ होगा ना ऐसा दैट इमीडिएटली यू टुक दिस स्टेप. सो इट्स नथिंग दैट्स हैपेंड इन वन डे. ये बहुत लंबी प्रोसेस चल रही होती है कि सोच बहुत दिन से रहते, हिम्मत नहीं हो रही थी आने की. सो येस, यही वाली बात आई वुड लाइक टू कंटिन्यू पिछली वाली चीज़ ही कि गोइंग टू द जूनियर रेजिडेंट माइट हेल्प. दे माइट हेल्प यू ईज आउट द फैक्ट कि हम यहाँ नॉर्मल लोग ही देखते हैं, नॉर्मल लोगों का ही इलाज होता है. सिकैट्रिक इलनेसेस हैव लॉट बिन आई वुड से डिमोनाइज्ड ऑल्सो. बहुत उस तरीके से उनका शेप बना दी गई कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं ये वाले लोग. सो पीपल समटाइम्स डोंट इवन रिलेट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन टू अ साइकाइट्रिस्ट. उनको लगता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास ना बड़ी बीमारी में जाया जाएगा जब पूरा आपा खो देंगे या पूरा कंट्रोल हमारा ख़त्म हो जाएगा तब. सो वाई वेट, कम एज सून एज पॉसिबल. हम जो प्रॉब्लम शुरू हुई है लेट्स टैकल इट देन एंड देयर सो दैट इट डज नॉट एस्केलेट. अपने पीयर्स के पास जाओ, वहाँ से प्रॉब्लम आगे सॉल्व होएगी ही होएगी. मतलब मैं आपके साथ शायद थोड़ी बात में ये एग्री भी करता हूँ कि बहुत बार हम किसी एक बहुत सीनियर एजेड फेलो से बात करने में हमें डर लगता है. तो डू यू थिंक दैट पर्टिकुलर एज फैक्टर ऑल्सो मैटर्स? Sometimes yes, because as a patient also, see, I would have this bias. A lot of people have told me this कि वो मेरी बात कैसे समझेंगे, वो भी मेरे वाले टीचर की तरह डिसमिस कर देंगे. जब मेरे डिपार्टमेंट में कोई सुन नहीं रहा तो ये लोग भी तो उसी एज के हैं, मे बी दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड. So first and foremost thing, coming to a psychiatrist, it's confidential, it's non-judgmental and it will help you. ये एक पॉइंट हो सकता है, तभी बार बार मैं बोल रही हूँ सीनियर रेजिडेंट स्पेशली प्ले अ वेरी वाइटल रोल बिकॉज एज अ जूनियर रेजिडेंट यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब देम समथिंग एंड यू शुड नॉट. एंड ऑल्सो आप उतने उस समय तक स्किल्ड नहीं होते कि आप ऐसा कोई पर्सन हैंडल कर सको. आप अंडर सुपरविजन ही काम कर रहे हो. तो मुझे लगता है मेडिकल कॉलेजेस के जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल बिकॉज यूजुअली जब हमारे पास रेजिडेंट्स आते हैं ना, मैं देखती हूँ इट हैज़ बिन ब्रॉट अप, दे कम विद ईदर देयर ओन सीनियर रेजिडेंट या हमारे वालों के साथ ही कि आई टॉक टू देम एंड मैम दिस हैज़ हैपेंड एंड हाउ वुड वी लाइक टू टेक दिस फॉरवर्ड. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो हमें डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, तो वो कहीं तो जा रहे हैं. दैट माइट बी एन इशू, आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली. आपको तो बहुत पोस्ट रेजिडेंट मिले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स मिले हैं हु आर गोइंग थ्रू. डिड यू फाइंड लाइक they are under so much stress, so what is the thing that you advise them on how to manage their stress? Sadly, the good advice that we would like to give to our patients,
they cannot be applied to our residents. I would like them to have a good night's sleep, but that cannot be prescribed to them, and it is not possible for them to do it at that point of time. They would like to eat. After 36 hours, they would like to sleep. So उनके साथ specifically ना, we talk about bio, psycho, social. जब हम mental health की बात करते हैं, तो यहाँ जो ज़्यादातर फैक्टर है वो तो सोशल फैक्टर है ना, कि हम खा नहीं पा रहे और सो नहीं पा रहे, तभी इतने इश्यूज हो रहे हैं. कई बार वी एडवाइज रेस्ट if the person is under significant stress, that see, it is not advisable for them, for the patients or the college, for them to work under this condition. So yes, rest advice करा जाता है after evaluation. So that could be one thing. If किसी को ऐसा लग रहा है मेरा ब्रेकडाउन होने वाला है, मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो आप हेल्प लो. इस तरीके से हेल्प अवेलेबल है और आपको मिलती है, प्रॉपर लेटर पे फॉर्मली मिलेगी कि यू विल बी एडवाइज्ड रेस्ट due to XYZ condition after evaluation, because you cannot be working under such mental health condition. So that is one thing. But yes, we need more workforce. That is the ultimate and long-term solution for reducing this stress. हमारी workforce अभी भी relative to population growth, it's not matching that. Everybody comes and says PG seats have exponentially increased. So I don't think, first of all, exponentially, they have improved. But उसके side by side population कितनी explosion हुआ है, तो दैट इज नॉट मैचिंग. जितना पेशेंट इनपुट है उसको टैकल करने के लिए वर्कफोर्स बिल्कुल भी नहीं है. एंड एक्चुअली बिल्डिंग ऑन दिस कॉन्वर्जेशन, जैसे फिर शादियाँ होती है सबकी, देयर इज अ लॉट ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड बिकॉज लेट्स सपोज द मेडिसिन गाय मैरीज एन ओबीजी रेजिडेंट, तो उसके बाद बोथ आर ओवरवर्क्ड, सो दैट बिल्ड्स अप द स्ट्रेस इन द होम इटसेल्फ. सो उन दोनों को अपनी लाइफ को टैकल करना है, दे हैव टू सॉर्ट आउट देयर इश्यूज. उनको कैसे करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स बेटर इफ दे आर इन द सेम कॉलेज, विच यूजुअली डज नॉट हैपन. लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करना आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली आई थिंक इन आवर्स, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वर्किंग 24 आवर्स, 36 आवर्स, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर्स एंड सेकेंड ईयर्स. और उसके बाद भी वी हैव हैड पोस्ट ग्रेजुएट्स कमिंग टू अस विद थीसिस स्ट्रेस. नहीं हो रही, काम छोड़ दिया, मतलब इतने स्ट्रेस में आ गए कि थीसिस अब लिख भी नहीं पा रहे. तो इस तरीके से भी हो जाता है. एंड देयर स्पाउसेस कम विद देम, दे स्टे विद देम, दे टेक लीव्स फ्रॉम देयर कॉलेजेस. सो नेचुरली इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल. बट वही बात है, अगेन इट्स अनफॉर्चुनेट दैट ऑल ऑफ लाइफ इवेंट्स आर हैपनिंग टुगेदर. यू कैन नॉट जस्ट वेट एंड वॉच कि आई विल गेट मैरिड आफ्टर माई पोस्ट ग्रेड, और आई शुड गेट मैरिड फर्स्ट एंड देन डू माई पोस्ट ग्रेड. ऑल द मेजर लाइफ इवेंट्स will happen in that 20 to 30 age bracket approximately, and sadly that is the age one is most prone to develop mental health issues. So you're going through hormonal changes, you're going through life changes, you're going through stress, and that is the reason this increase in stress in those people. Open communication, understanding, like any other relationship, but yes, I think give it time. Instead of wanting to fix everything right now, right here, let's wait until PG is over and actually realize हमारे साथ issues हैं भी, या ये सिर्फ टाइम की कमी की वजह से हो रहे हैं. Naturally, a lot of things might resolve with time also. How do you describe open communication? Because I think that's a very generic term. अब ओपन कम्युनिकेशन के लिए भी दोनों लोगों को एटलीस्ट उस सेम लेवल पे होना चाहिए कि जो मैं बोलूँ दूसरे को समझ में आए, एंड दे डोंट टेक इट लाइक इन अ नेगेटिव मैनर, एंड दे डोंट बिकम डिफेंसिव अबाउट इट. एंड आई एम नॉट सेइंग अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट दैट, बिकॉज वी हैव हैड रेजिडेंट कपल्स कम इन एंड से कि इतनी लड़ाई होती है, हम पढ़ाई करें, काम करें, थीसिस लिखें या लड़ाई करें. सो दैट हैपन्स बिकॉज सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस, प्रोजेक्शन, देयर इज सो मच हैपनिंग. आप डिपार्टमेंट पे फ्रस्ट्रेटेड हो, वहाँ नहीं निकाल सकते, तो आप घर पे निकाल रहे हो वो वाली चीज़, ऐसे भी हो जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, ओपन कम्युनिकेशन मीन्स ये मेरी ड्यूटी है, नहीं कर सकता. अब अगले सामने से यही बोलेगा, वाई कैन यू टेक आउट 5 minutes, किसी आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, आई कैन नॉट टेक आउट दोज 5 minutes. एंड और वी कैन अलाइन अ schedule in such a way, we can schedule a phone call at this point of time, instead of just waiting on the phone and getting irritated over your partner कि आज बात ही नहीं हुई या एक भी मैसेज नहीं आए. लेट्स अलाइन आवर schedules and अपॉइंटमेंट वाइज कर लो उसे. इफ इट्स नॉट हैपनिंग नेचुरली, लेट्स मैकेनलाइज इट, लाइक लेट्स schedule it further. कि आपको भी पता है ना, दूसरा जना दूसरे सिटी में होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बिल्ड हो जाते हैं, क्योंकि हर जने का मेरे पास यही क्वेश्चन होता है कि 5 मिनट भी नहीं मिलते क्या? मिलते हैं भाई, पर उसमें उसे खाना है, सोना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, कितने काम है. सो इट्स बेटर टू शेयर योर स्केड्यूल्स, हैव अ फिक्स टाइम कि हम इतने बजे से इतने बजे बात करेंगे, ये मेरा मैसेजिंग टाइम है, ये मेरे OT डेज होते हैं. ये थोड़ा सा बेटर है, सो दैट डज नॉट लीव द अदर पर्सन वंडरिंग
अब क्या कर रहा होगा, अब ये कहाँ गई होगी, थोड़ा ये वाली चीज़ मैनेज हो सकती है. आपने एक बात कही थी, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेस ऑन द पार्टनर इटसेल्फ. आई थिंक दैट्स द व्हाट यू कॉल द मोस्ट ह्यूमनाइज वे. यही होता है, ठीक है, आप कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हो. इस चीज़ को रोकने के लिए what should steps that a person should take? What are the steps actually? दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी. एक सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, ये फैंसी टर्म्स हम सुनते सब हैं, पर आई थिंक समझ नहीं आती कि एक पर्सनल जर्नी और डेवलपमेंट क्या होता है. लाइक हाउ आई वॉज बिहेविंग एट 20 years old, आई कैन बिहेव एट 30, बट शुड आई? ये वाली जो चीज़ है कि क्या मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई, मेरे लाइफ में जो XYZ चीज़ें हुई, be it residency or any other thing that's happening, did it change my coping mechanisms? First of all, accepting and analyzing that these are my triggers. सबको अपने एक हेल्दी एज पे पता लग जाना चाहिए, भाई मेरा ट्रिगर क्या है, दिस सेट्स मी ऑफ. लाइक सी, anger is a completely normal response. Like being happy, being sad, being angry, it's okay. Everybody of us has these emotions. Problem तब आती है when the anger is beyond a point. It's disrupting your life. हम हर चीज़ में मेंटल हेल्थ इशू में यही वाली चीज़ बोलेंगे, फंक्शनैलिटी वर्ड जो है, फंक्शनैलिटी इम्पेयर हो गई ना अगर मेरी रोज़ रोज़ में, तब वो प्रॉब्लम बन जाती है. तो आइडेंटिफाइंग माई ट्रिगर्स एंड एक्टिवली वर्किंग ऑन इट, ये लंबा प्रोसेस है. ये ऐसा नहीं है कि मेरे को आज अपना ट्रिगर पता चला एंड आई वर्क ऑन इट. मे बी नेक्स्ट टाइम आई एम एंग्री, आई नो माई ट्रिगर बट आई डू नॉट नो हाउ टू मैनेज इट. दिस इज़ वेयर थेरेपी कम्स इन टू प्ले एंड दिस इज़ वेयर यू रियलाइज दैट वॉट वर्क्स फॉर मी. लाइक एक जनरल स्टेटमेंट बोला जाता है, डू जर्नलिंग, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा. It's not a blanket term. We can advise it to people, but then how to do it is a little hand-holding process. कि इस तरीके से करो, ये हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा. ज़रूरी नहीं है सब एंगर वाले इंसान को लिख के आराम पड़ जाए. They might benefit from mindful breathing, exercising, eating right, sleeping right. So ट्रिगर पहचानना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस पर उस समय एक रिलैक्सेशन टेक्निक लगाना भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये ज़रूर आगे काम आ सकता है. अगर आज रेजिडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, and apart from stress and depression wala part, anxiety is also a very big part of their life. And anxiety of course, जैसे मैं भी नाखून खाता हूँ, I'll be very frank on that. तो anxiety को कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं? नॉर्मल इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल इमोशन क्या होता है? हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, एंग्जाइटी. इतना एंग्जाइटी टर्म हमने ओवर यूज़ कर लिया है कि अब जो भी जना बोलता है वो कहता है मुझे एंग्जाइटी हो गई है. तो एंग्जाइटी होना और एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने में फ़र्क है. एंग्जाइटी सबको होगी. आपकी कल कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, आप एंग्शियस हो गए. कल नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो एंग्शियस हो गए. आज बॉस ने कोई प्रेजेंटेशन मंगाई है तो इट्स नेचुरल टू बी एंग्शियस. प्रॉब्लम अगैन कम्स व्हेन इट इज़ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कि इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, मैं इतना ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि मैं काम ही नहीं कर पा रहा, सो ही नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, कुछ और सोच नहीं पा रहा. मेंटल क्लाउडिंग हो गई, जो एक टर्म आजकल यूज़ होती है, ब्रेन फॉग. दिमाग में सब घूमता रहता है, क्लैरिटी किसी चीज़ की मुझे नहीं मिल रही. सो अगेन इट्स ओके टू बी एंग्शियस, एक्सेप्टिंग. सबकी एक पर्सनैलिटी होती है. कोई जना थोड़ा सा ओवर केयरफुल ज़्यादा होता है, कोई जना थोड़ा सा क्लेनलीनेस की तरफ ज़्यादा बेंट होता है, कोई जना बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, कोई जना थोड़ा सा एंग्शियस होता है. सो इफ़ इट इज़ इन माई पर्सनैलिटी देन इट्स ओके, आई विल बी मोर एंग्शियस देन अदर पीपल. बट डज दैट मीन आई हैव एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर? नो. सो एंग्जाइटी के लिए स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. मेडिसिन्स माइट हेल्प यू फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट, लाइक पैल्पिटेशंस, चोकिंग इन द थ्रोट, ट्रेमर्स आने लगते हैं कि लिख भी नहीं पा रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे, हेडेक होने लगता है. ये वाले सिम्टम्स हम काफ़ी हद तक मेडिकेशन से मैनेज कर सकते हैं. बट इन लॉन्ग टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग आउट वाई एंग्जाइटी इज़ हैपनिंग, एंड सेकेंडली थेरेपी. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, माइंडफुल ब्रीदिंग बहुत अच्छा एंग्जाइटी में काम करते हैं. और ये अगेन देयर इज़ नो वन फिक्स फॉर ऑल, इट्स अ वेरी टेलर मेड प्रोसेस. फ़र्क पड़ेगा बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट लाइक एनी अदर थिंग इन लाइफ. अब हम बहुत देर से थेरेपी की काफ़ी बात कर रहे हैं. मैं एक्चुअली चाहूँगा कि एक बार आप थेरेपी के पूरे प्रोसेस को हमें एक बार डिटेल में समझाइए, बिकॉज हर बंदा सुनता है थेरेपी इज़ अ नॉर्मल वर्ड राइट नाउ, बट पीपल डू नॉट नो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. कितना टाइम लगता है, दे सडनली हैव फिक्सेशन इन देयर माइंड कि मैंने आज एक सेशन लिया है तो मेरा काम हो जाएगा. सो मेरा ये रहेगा आपसे कि एक बार थेरेपी समझाइए, होती क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है. बहुत कॉमनली यूज टर्म है कि थेरेपी ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, पर थेरेपी में आप जिसने ली भी है उससे पूछो कि क्या करा तो वो खुद भी कंफ्यूज होगा कि
कुछ तो हुआ पर ये नहीं पता क्या हुआ. तो अगेन एक सेशन का कोई इसमें फ़ायदा नहीं है कि आपने सोचा कि मैं एक सेशन पे गया और मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. सो मोस्ट कॉमन वन दैट वी यूज़ इज़ अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट्स कॉल्ड द CBT. सो उसमें कॉग्निशन, इसके दो वर्ड्स आई डिवाइड देम. सो कॉग्निशन से बिहेवियर का हम रिलेशन देखते हैं, सी हाउ दे आर अफेक्टिंग ईच अदर. इट इज़ अगेन टेलर मेड. एक कोई टेक्स्ट बुक नहीं है ऐसी कि आई कैन रीड आउट द पॉइंट्स एंड से थेरेपी में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हम ये करते हैं. वाई वुड अ स्ट्रेंजर ओपन अप टू मी इन द फर्स्ट प्लेस इन द फर्स्ट सेशन? थोड़ा दोनों के कंफर्ट लेवल बैठने में. एंड अगेन देयर इज़ नो वन राइट थेरेपिस्ट फॉर एवरीबॉडी. सबका कंफर्ट लेवल होता है. कुछ मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं ये वाला थेरेपिस्ट इतना बढ़िया आपने बताया था, कोई उसी की बुराई करेगा. सो एवरीबडी इज़ नॉट अ मैच फॉर एवरीबडी. But yes, basis of therapy would be dealing with the issue in hand or sometimes want to process what happened in the past. कई बार लोग सिर्फ I would say come for a neutral opinion also, which usually therapists do not give. We do not give advices and opinions. We might serve as a third party, a neutral party to see your ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं हम आपके इश्यूज़ को, बिकॉज हमारा उसमें कोई बायस नहीं इन्वॉल्व होता. मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हूँ आपके किसी भी उस सिनेरियो में. तो वो एक फ़ायदा हो सकता है. एंड इन वाले केसेस में आई थिंक पीपल फाइंड क्विकर सॉल्यूशंस. बट यूजुअली डोंट कम टू थेरेपी लुकिंग फॉर एडवाइस. डोंट लुक एट इट कमिंग फॉर ओपिनियन कि मुझे कुछ चेंज करना है, आप बता दो क्या करें. कई बार लोगों को ये वाली मेंटालिटी भी होती है कि हम थेरेपी में जाएंगे, वो बताएंगे क्या करना है, फिर मैं वैसे वैसे करना शुरू कर दूंगा. नोबडी विल गिव यू hand holding process कि let's do this. It is a long term process. It will be very different for everybody. Same person की ही अगर multiple therapist से therapy होगी तो वो भी अलग अलग होगी. Just dividing your cognition, why and how it is changing your behavior. और कितना टाइम लगता है? Varies. 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 At least कोई textbook definition again इसकी नहीं है. 6 sessions to 12 sessions. एक हम ये एक rough idea लेके चलते हैं कि at least इतने में हम एक ऐसी जगह पहुंचने चाहिए जहां हमें लगता है कुछ फ़र्क आना शुरू होगा. बट अगेन सम पीपल डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. टाइम ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता है. जैसे पहले इट माइट बी वंस इन 15 days, देन वंस इन अ मंथ, देन एक मेंटेनेंस वंस इन 3 months. At some point of time we say that okay, let's close this therapy session here and I think you have enough tools, enough guidelines to how move forward in life and see me later if you want to. I don't think कि अब इसके आगे हम यहाँ से कहीं जाएंगे. तो closing is also difficult because sometimes people also become dependent on the therapist कि I will come back again. So you have to be strict little bit and they're no, I am here but अब इसके आगे कुछ हो नहीं रहा ना, तो आप नहीं आके करना क्या है. तो एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज फॉर अ जनरल ऑडियंस एज वेल, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट? बिकॉज मेनी पीपल आर कंफ्यूज कि किसके पास जाना चाहिए फॉर द राइट एडवाइस. The age old, the golden question. I will simplify it. And again, it's a very, very simple explanation. This does not, I would not be calling out the complete qualifications. But to simplify it again, a psychiatrist is a medical doctor, which means they have done their MBBS and or their MD or DNB in psychiatry. So because they have done their MBBS, they are a doctor. So they are trained to write medicines. So psychiatrist is someone who would write you medicines, but also they are trained in psychology, so they can also give you therapy. It is up to their discretion if they want to do medicines and therapy both, or if they prefer to just do medicines. Whereas a psychologist, that you become after your undergrad, postgrad, and then you become a psychologist. So they mostly deal with therapy. उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लाइक अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. कौन इसमें से डायग्नोसिस बना सकता है, कौन सिर्फ काउंसलिंग कर सकता है, दैट इज़ अदर इंट्रिकेसीज. एंड ऑल द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स watching, it's a very, very weird scenario right now. I would let you in on that RCI is changing guidelines every day. So even students who are pursuing psychology right now, they don't know if next year they are eligible to be a psychologist or not. Every day, like literally every week, they have a new guideline कि ये डिग्री आपकी 2 साल की है, ये 3 साल की है. अच्छा नहीं, ये 1 साल की हो गई है. बट स्टिल एक अंडर पोस्ट ग्रेड डिग्री आपको ज़रूरी है. सो इट माइट बी BA, MA, BSc, MSc, and or again if people want to go further and go on to doing PhD to become a clinical psychologist. सो थेरेपी वाला सेक्शन वहाँ पे चला जाता है और मोटा मोटा समझने के लिए, एंड द मेडिसिन पार्ट कम्स टू अस. Actually true.
एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि दैट एक जनरल हमारी जो ऑडियंस है, एक आम इंसान को अगर अपने आप को मेंटली फिट रखना है, so what should be the daily routine or steps he should follow, he or she should follow every day? मैं थोड़ी दादी माँ वाली एडवाइस दूंगी यहाँ पे, विच पीपल हैव सेड दैट्स अ वेरी जेनरिक थिंग. स्लीप इज़ वेरी अंडररेटेड. वी हेट स्लीपिंग एज किड्स. तब मम्मी बहुत डांट के पीट पीट के सुलाती हैं सबकी कि सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है. Somehow you start develop, I think, an unhealthy relationship with sleep, and over years when you grow up in college, in adult life, sleep को बहुत हम taken for granted लेने लगते हैं, क्योंकि उस एज में जब चाहो तब sleep आ जाती है. But then the problem arises when the sleep does not come. It does not come at the right time, at the right place, and in the right duration. There is this concept of sleep hygiene. सही समय पे सोना, कहाँ सोना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, आपकी बॉडी के हिसाब से कितनी होनी चाहिए. स्लीप बहुत अंडररेटेड है. जब आप जितनी कम एज में रियलाइज़ कर लो कि मेरी बॉडी को इतनी स्लीप चाहिए और इससे मेरा क्या होगा आगे, आप कम से कम 1 महीने 2 महीने वो करके देखो, आपको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा. सो ट्राई टू बिकम बेस्ट फ्रेंड्स विद योर स्लीप. एक स्लीप के साथ जो एक लेजीनेस, या लोग टोकते बहुत है ना ज़्यादा सोने पे, तो वो एक जो अटैच्ड है वो भी हमें कम करना पड़ेगा. स्लीप बहुत नेसेसरी है. उसके अलावा द राइट फूड. देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द गट एंड द ब्रेन एक्सिस. जो आप खाते हो उससे आपकी सोच पे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो ईटिंग राइट. सो स्पेशली विद द फास्ट फूड कल्चर्स एंड विद द 1 मिनट डिलीवरी, हर चीज़ आपके हाथ में, आप जब जो खाना चाहते हो आपके हाथ में आ जाएगी. So that is also one of the factors that we are probably as a whole generation not eating right. क्योंकि सबको ही वो cravings होती हैं और अब मंगा लेते हैं तो खाते हैं. So eating and sleeping, very generic and the most difficult one to change. Medicines surely can help, but they are not the long-term solutions for that. Eating right, exercising, and again, forming good, healthy relationships. Don't undervalue people in your life. देयर विल बी सम पीपल जो लॉन्ग रन में बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे. बहुत जेनरिक है, पर यही चीज़ें कोई कर ले तो आपको इसके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती हैं. और डेली बेसिस पे ये जो ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन हम लोग फेस करते हैं, इसको कैसे डील करना चाहिए? वी टॉक्ड अबाउट जर्नलिंग. ये सबसे ईजी चीज़ है, सबने सुन रखी है. इफ़ यू फील दैट, किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, काम नहीं हो रहा मुझसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, एक जर्नलिंग एक तरीके से ऐसे भी यूज़ हो सकता है, लेटिंग आउट योर थॉट्स और राइटिंग देम इन अ जर्नल, इन अ पीस ऑफ पेपर. तो कई बार उससे भी बहुत क्लैरिटी मिलती है. स्पेशली इन टुडेज एज देयर इज सो मच टू डू. सबको काम भी करना है, घूमना भी है, खाना भी खाना है और नींद भी अब पूरी करनी है. सो स्केड्यूलिंग विल ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर. If I have my next week planned, if I have my next day scheduled and planned, like we did as kids, somebody else was planning the life for us. कुछ सोचना नहीं था ना. सोचो कितने साल स्कूल में एक ऑटोमेटिक मोड पे दिमाग चला है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, स्कूल में इतनी देर रहना है, स्कूल में भी सब डिसाइडेड है क्या कब पढ़ना है. इफ़ वी फील आवर ब्रेन इज़ ऑटोमेटिकली नॉट एबल टू मैनेज दैट, तो एक स्केड्यूल बनाओ. कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन का रीज़न ये भी होता है ओवरवेलमिंग. इतना कुछ है करने को, कैसे होगा, मैनेज ही नहीं हो रहा कुछ भी. थोड़ा सा टाइम ऑफ ले सकते हैं 1-2 दिन में. अगर ओवरवेलमिंग है और पेंडिंग वर्क है तो उसको तब ख़त्म कर लें. बट हाँ, जर्नलिंग फ़ायदा देती है, नॉट दैट सबको देगी, बट एक ये बेसिक चीज़ है तो हम शुरू कर सकते हैं. एक माइंडफुल ब्रीदिंग जो मैं बार बार बोलती हूँ, इट्स अ स्लो एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. काफ़ी मेंटल क्लैरिटी मिलती है, फोकस ब्रीदिंग पे आ जाता है, तो थोड़ा माइंड उससे भी खाली हो जाता है कि एक्चुअली करना क्या है, लाइक हाउ टू नेविगेट दी स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट आई एम फीलिंग. बट येस, इफ़ नहीं हो रहा खुद से, डोंट वेट एंड सिट ऑन द इशू. गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड से आई नीड हेल्प. बहुत लोग ये भी पूछते हैं ना वहाँ जाके बोलना क्या है, आप बस आ जाओ. 3 मैजिकल वर्ड्स. या आप ये भी मत बोलो. समटाइम्स पीपल जस्ट कम एंड सिट. मैं घर से सोचते हुए आ रहा था यहाँ क्या बोलूँगा, मुझे समझ ही नहीं आया, तो बस मैं आ गया. इवन दैट इज़ फाइन. यू डोंट नीड टू डू वर्क बियॉन्ड इट. आपका काम सिर्फ सही जगह पहुंचना है, सही समय पे. अगर आज मैं बात करूँ, एक स्टूडेंट या एक नीट पीजी एस्पिरेंट है जो 1 साल अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, दे आर द वंस हु आर राइट नाउ अंडर ह्यूज स्ट्रेस. उनको पढ़ना भी है, उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी है, उनको परफॉर्म भी करना है, एग्ज़ाम आ रहा है, सरकार रोज़ कुछ ना कुछ नए लफड़े ला रही है, डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है. तो उसको अपनी डेली हेल्थ, डेली मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी चाहिए? हमने बायो साइको सोशल की बात की थी. अब इसमें जो सोशल फैक्टर है वो बियॉन्ड आर कंट्रोल है, हम उसे नहीं कर सकते.
ईच एंड एवरीबडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज पहले एग्जाम डिले होता रहता है, फिर काउंसलिंग डिले होती रहती है। और मैं ये भी नहीं उस टाइम पे एडवाइस कर सकती कि आपका एग्जाम आ रहा है तो इस समय आप 8 और 10 घंटे की नींद लोगे। बट येस, इट इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो पहले दिन से ही अगर 4 घंटे सो गए तो एंड तक तो बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी ये बात पक्की है। स्लो एंड स्टेडी प्लानिंग हाउ माई नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी, क्या अप्रॉक्सीमेट डेट एग्ज़ाम की है और मुझे अब क्या लेके चलना है। आज इतना सो के काम चल सकता है, बट येस, ब्रेक्स आर नीडेड। मैं सोचूं मैं 1 साल कम्प्लीटली वर्ल्ड से कट ऑफ होके कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करके कुछ हो जाएगा, might be possible but rarely. You need that kind of downtime, you need that kind of relaxation also for the like matter to go inside. वो जो पढ़ रहे हो सेफ भी तो होना चाहिए। अगर हाई स्ट्रेस में कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ आप रीडिंग कर रहे हो, वो यहाँ पे सेव होना ही नहीं है। 10 मिनट या 15 मिनट एटलीस्ट मैं कहूँगी, वॉकिंग तो पॉसिबल है। उस समय मैं नहीं कह रही आप जिम जाओ या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट यूज़ करो। अ स्ट्रोल इज़ फाइन वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड येस, स्लीप को कहीं ना कहीं उस पूरे 1 ईयर 1.5 ईयर के ड्यूरेशन में कभी तो प्रायोरिटाइज करें। मे बी लाइक स्केड्यूल अप, लाइक फिल अप ऑन स्लीप बिफोर, कि एंड में हम पुश दे सकें। एंड में तो वो स्प्रिंट बन जाती है ना। कुछ ना कुछ इस तरीके से हमें लेके चलना पड़ेगा कि एंड में मेरे पास वो एनर्जी बचे वो पुश देने के लिए। बट 10 मिनट 15 मिनट, और हॉस्टल में रहते हो तो सब एक टाइम कॉमन बना लें कि यहाँ गप्पे मारेंगे 15 मिनट पेपर की बुराई करेंगे, 15 मिनट नीट की बुराई करेंगे, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएंगे। सोसाइटी, यू नीड पीपल, ये हमेशा रहेगा ये बात। Yeah, मतलब कि human is a social animal. Till the time that they don't have their own people around them, they are never able to work productively. और एक मेरा एक्चुअल अच्छा मेजर क्वेश्चन रहेगा ये वाला कि दैट जब स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता है तो वो 3.5 घंटे उसकी लाइफ के सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट होते हैं। और बहुत बार ये होता है कि लोग एग्ज़ाम लिखते लिखते एनजाइटी के मारे भूल जाते हैं जो उनको नॉर्मली भी आता है। सो उस टाइम पे इफ़ दे आर गोइंग थ्रू एनजाइटी मेल्ट डाउन ब्रेक डाउन, तो उस टाइम पे उन्हें अपने आप को कैसे संभालना चाहिए उस 3.5 घंटे को प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए। See, my advice would differ depending on what state you are in. जो फंक्शनैलिटी की हम बात करते हैं, हमें चाहिए कि प्राइम प्रोडक्टिविटी मेरी निकलनी चाहिए किसी भी एज में। अगर कोई जना आज प्रिपरेशन कर रहा है और अगले साल एग्ज़ाम है, तो मेरी उसको एडवाइस ये वाली रहेगी कि आप अपना स्लीप स्केड्यूल करो, लाइफ मैनेज करो, एक्सरसाइज करो। बट अगर मेरे पास इस समय कोई बच्चा आ रहा है और वो बोल रहा है मैम 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और हाथ काँप रहे हैं, दिमाग नहीं चल रहा, नींद नहीं आ रही, आई वुड 100% गो इनटू अ मेडिसिन रूट। वाई वेस्ट अ चाइल्ड्स, उस बच्चे ने पूरी MBBS तैयारी करी, पूरी इंटर्नशिप तैयारी करी, उस 1 महीने के स्ट्रेस एंग्जाइटी के ऊपर इट्स सो डिफिकल्ट। समटाइम्स वो कहते हैं हमसे क्लिक भी नहीं हो रहा, आंसर चेक करने के लिए हाथ में इतने ट्रेमर्स आ जाते हैं। सो अ शॉर्ट टर्म कोर्स फॉर एंग्जाइटी डिपेंडिंग ऑन आफ्टर इवैल्यूएशन, आई वुड सीरियसली एडवाइज इट, बिकॉज उस समय टाइम की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है आपके लिए। वी कैन नॉट वेट एंड वॉच। थ्योरेटिकली तो थेरेपी यहाँ काम करेगी, बट प्रैक्टिकलिटी में मैं यहाँ एडवाइस नहीं कर सकती आप 1 घंटे थेरेपी लो। वो कहेगा मैं सो भी कम रहा हूँ, मैं थेरेपी के लिए टाइम कहाँ से निकालूँ। इमीडिएट रिजल्ट्स, या एटलीस्ट आई वुड नॉट से कि प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए, प्रॉब्लम सबसाइड करने के लिए हम मेडिसिन का रूट जरूर लेंगे। फिर एग्जाम के बाद वी कैन सिट एंड इवैल्यूएट अगेन कि आज क्या प्रॉब्लम बची, अब हम कौन से रूट पे जाएं, ईदर और या बोथ। क्योंकि ऐसा नहीं है ना एग्जाम में एंग्जाइटी नहीं आई, सप्रेस्ड थी तभी तो वो बढ़ गई। सो येस, उस समय हेल्प लेने से बिल्कुल ना डरें। मेडिसिन आपको उस समय अच्छा हेल्प दे सकती हैं, वो अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट मत करो। अब एग्ज़ाम के अंदर अगर मान लो एनजाइटी फिर हैवी हो गई, फिर क्या करना है? इफ़ इट इज़ अलाउड इन योर एग्जाम सेंटर, आई वुड से एडवाइजिंग गोइंग टू द वॉशरूम। बहुत अजीब लगती है सुनने में बात, पर कई बार स्टेपिंग आउट ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो हेल्प्स। उस समय ना कुछ दिखाई देता है ना आसपास सुनाई देता है, कई बार पता भी नहीं चलता आसपास कितने बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप और आपका वो स्क्रीन ना एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस और ख़त्म करने। गोइंग टू द वॉशरूम, वॉशिंग योर फेस, ड्रिंकिंग वाटर sometimes give you that click back to reality that it's okay and I can do it. मैंने पढ़ाई करी है, मुझे आता है। पैनिक में उस समय क्वेश्चन आंसर करते मत चले जाओ, मे बी आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाए। डीप ब्रीदिंग गिव्स अ गुड माइंडफुल, लाइक उस समय वापस क्लैरिटी वापस आ सकती है। डीप ब्रीदिंग का जो बहुत सिंपल टेक्निक है, आई विल जस्ट लाइक टू टेल यू दैट इट्स 4 सेकेंड इनहेलेशन, 5 सेकेंड्स होल्डिंग इट इन एंड 7 सेकेंड्स एक्सेलिंग आउट। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, 4 या 5 बार भी इसे करोगे तो मेंटल क्लैरिटी कैन कम बैक एंड द एंग्जाइटी कैन गो डाउन। बट उस समय पैनिक में सिचुएशन करना तो बिल्कुल आपको पक्का जो आता है ना, आप गलत ही करोगे वहाँ से आगे चलते हुए। सो स्टेप आउट ऑफ दिस सिचुएशन वुड बी माई एडवाइस, इवन इफ क्लोजिंग योर आइज इज ऑल्सो ओके।
कि उस सिचुएशन से बस डिस्कनेक्ट हो जाओ कि 2 मिनट मैं अपने घड़ी से देख के आई एम नॉट सिटिंग हियर, आई एम इन समवेयर एल्स ओनली, देन कम बैक टू इट, यू माइट बी एबल टू परफॉर्म बेटर. एक्चुअली दैट्स एन एक्सेलेंट एडवाइस गाइज. आई थिंक अगर आप में से कोई भी अभी ग्रैंड टेस्ट देते हुए इस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहा है तो आई थिंक यूटिलाइज करिए इसको और आज से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करिए कि अगर भगवान ना करे आपके मेन एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ गई तो यू हैव अ सोल्यूशन रेडी विद यू. सो एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड एडवाइस. एंड आई थिंक एक बहुत वियर्ड क्वेश्चन लगेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज सेक्स फॉर मेंटल हेल्थ? इस पे बहुत सारा डिबेट होता है. A lot of people, because see, when it comes to sex, there are a lot of religious, cultural views also attached to it, and it is very difficult to study it purely for mental health purposes because again, we cannot experiment on it obviously. So yes, sex, especially orgasm. Sex के बाद जब orgasm होता है, उससे एक flood of hormones आ जाते हैं body में. बहुत रिलैक्सेशन, स्लीप में फ़ायदा होता है. बॉन्डिंग एक्सरसाइजेज तभी बोलते हैं कि इफ़ समबडी इज़ हैविंग सेक्स विद अदर पर्सन फ्रीक्वेंटली एंड दे गेट अटैच्ड बिकॉज ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस समय रिलीज़ हो रहा है, देयर इज सो मच फेरोमोन रिलीज. एंड पर्टिकुलरली अगर अपनी सिंगल इंडिविजुअल की बात करें, सो येस, वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंटल हेल्थ. नॉट जस्ट सेक्स पर से, आई थिंक मैस्टरबेशन ऑल्सो, दैट टू अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड आस्क कि मैस्टरबेशन एडिक्टिव कब है, या बहुत लोगों को इस चीज़ से भी डर लगता है कि एवरीडे मैस्टरबेशन इज़ रॉन्ग. सो इट्स कम्प्लीटली फाइन टू डू दैट बिकॉज not everything has to be sexually motivated. Sometimes it is just for relaxation purpose and sometimes it is just out of being bored or freedom or just having nothing else to do also. So yes, both of these activities will make one feel relaxed, release of good your happy hormones, flooding them in your brain, and yes, help in elevating your mood also. बहुत direct relationship है and very healthy to practice it in a very, I would say, consensual manner. आई थिंक इंडिया में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है. आई थिंक आरजीकर जो केस हुआ अभी, आई थिंक दैट मैन मस्ट हैव बीन सो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, या क्या दिमाग में चल रहा होगा. मैं एक्चुअली इस बारे में बात करना चाहूँगा कि एक रेपिस्ट के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है दैट दे एक्चुअली गो इनटू सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम मेजर्स. It is very difficult to say this per se until unless we have particularly examined that one person. Usually, see, we talk about personality disorders. Personality issues a lot of people might be having. Personality disorders to the point of untreated. XYZ number of stresses in life. कई बार लोगों के साथ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इतने इश्यूज रहते हैं दैट दे वांट टू डू दैट टू अदर्स. सो उस पर्टिकुलर पर्सन को जब तक हम एनालाइज नहीं कर सकते, हम किसी एक लोगों के लिए तो नहीं ऐसे बोल सकते. बट येस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि वाई डू आई बिहेव द वे आई डू. तो उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वॉट इज़ द मोटिवेटिंग फैक्टर बिहाइंड इट. स्पेशली कमिंग टू दिस केस, आई डोंट थिंक हमने तो अभी अनकवर किया भी है. द डॉक्टर्स आर स्टिल ऑन स्ट्राइक एंड टुडे इज डे 5 और 6 ऑफ द हंगर स्ट्राइक. क्योंकि हमें एक्चुअल मोटिवेशन और रीज़न ही नहीं पता कि इतना बड़ा इंसिडेंस कैसे हो गया, दैट टू अंडर एक मेडिकल कॉलेज के प्रोमिसेस के अंदर. सो येस, ओवरऑल एक बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरीके से मैं कह सकती हूँ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट माइट हैव बिन अनडायग्नोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बिकॉज सी वॉट आई हैव सीन इन द न्यूज़, दे सेड दैट दे फाउंड अ लॉट ऑफ explicit content on his phone also, and he had been a repeated offender. So that is why it's also important for us to report such small incidents. I'm not even aware what they were completely, but बड़े ना बन जाएं. तो जितनी छोटी चीज़ कहीं पे भी गड़बड़ लगती है, जब भी जैसे पॉसिबल है, लेट्स गेट इट ट्रीटेड. ये उसके बाद पता चलेगा इशू था कि और ट्रीट हम कितना कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते उसे. I think I will take this moment to actually give my huge respect to all the Kolkata doctors and all the medical community for actually coming together for the RGकर case. और उन सारे डॉक्टर्स को मेरा बहुत रिस्पेक्ट है जिन्होंने एक मास रेजिग्नेशन देकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है हमारी सरकार को कि डॉक्टर कम्युनिटी जब इकट्ठी होती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है. सो जस्टिस फॉर RGकर स्टिल कंटिन्यूज, विल कंटिन्यू टिल वी गेट जस्टिस फॉर आवर फॉलन वॉरियर. एंड आई थिंक मूविंग फ्रॉम दिस टॉपिक नाउ, एंड आई थिंक वन ऑफ द बहुत एक मेजर क्वेश्चन रहता है हमारे सारे स्टूडेंट्स का, अपकमिंग मेडिकोस का, दैट एक साइकेट्रिस्ट कितना कमा लेते हैं?
स्पेशली विद द कमिंग आई थिंक नीट काउंसलिंग जब आती है तब मुझे ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत रैंडमली लोग पूछ लेते हैं कि आप कितना कमाते हो, हम करें साइकाइट्री की ना करें. I will have varied answers for this. See, first of all, because it is a little niche branch, थोड़ी SRship की सीट्स भी उसी हिसाब से कम है. तो आई थिंक गेटिंग अ जॉब एनी वे SRship वुड पे यू इक्वली लाइक अदर ब्रांचेस, दैट इज अराउंड 1.3, 1.4. Mostly what people are getting in SRships, and that is at par with your colleagues in other branches. And again, like any other branch, nobody starts earning from the day one. True. आज अगर अपना सेटअप भी किसी को बनाना है, यू वुड टेक एटलीस्ट आई थिंक 5 to 7 years टू बी इन अ सूटेबल, एक कंफर्टेबल प्लेस पे आप पहुंच जाओ वेयर यू कैन ईजिली अर्न आई थिंक 1.5 plus per month. And is there a difference between tier 1 and tier 2 salaries? Yes, absolutely. See, coming from, I do a lot of rural work. I work in a lot of tier 2 and 3 cities. So yes, there is a huge difference in pay parity there also. I think the difference would be at least 1.5 to 2x. इतना difference है. Tier 1 में it would go anywhere above 2, 2.5. Okay, so tier 1 is right now paying the highest. Yeah. All right. And what is the future prospect of psychiatry? So many things are upcoming here, especially with the awareness that mental health has like been achieving globally. I think therapy is something which more people are more accepting now, and they would want to go into it. A lot of rehab centers coming up, specifically targeting to the point that there are centers specifically for alcohol addiction, specifically for drug addiction. And or like in foreign countries now, I'm not very sure, I think it was Japan. There's a one center specifically for mobile addiction. So with the coming age and coming technology, it might be possible that these things might come up in India also. But yes, I think therapy is also something along with the medications that is upcoming, and people would be more accepting to it and would take the help of it in the future. And do you think there's any cons of psychiatry? Yeah, the stigma. But apart from that, anything? Little bit, I would say, emotionally exhausting branch. But yes, again, see, I can say from my perspective only because I'm a psychiatrist. If I would want to compare it, it is not at par. Like, how can I compare the physical stress of an OB/GYN who's working day in and day out and who's not getting sleep compared to a psychiatrist who's relatively has a better work-life balance or has a better sleep schedule? So we cannot compare like emotional stress along with the physical stress like this. But yes, it is a little bit emotionally overwhelming when you start working. But with time, I think we learn to compartmentalize or separate it out of our personal emotions so that we don't affect the person in front of us. But yes, you have to train your mind to work accordingly. It is, yes, emotionally taxing. Well, thank you so much, Dr. Rashi. I think with this, we have come to the end of our conversation and we'll be moving to the rapid fire round. तो दोस्तों जाइएगा नहीं, रैपिड फायर राउंड होने वाला है अब. और डॉक्टर राशि, इस रैपिड फायर के सिर्फ 2 रूल्स हैं. पहला रूल, आपको सच बोलना है, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में जो पहला आंसर आएगा आपको वही बोलना है. एंड आपका रैपिड फायर हमने मेंटल हेल्थ के अराउंड बनाया है. ओके, सो आपने बताना ये चीज़ हमें, पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वायलेंट. No, completely false. मतलब आज भी देखा जाए तो हमारे गांव में कहा जाता है कि किसी को अगर कोई दौरा आ रहा है तो इसको चुड़ैल चढ़ गई है. कितने केसेस देखे आपने ऐसे? It is very prevalent. India is very, very highly culturally influenced. मैं बहुत छोटा सा इसका एक आंसर दूंगी. एंटीसाइकोटिक और जो मोस्ट ड्रग्स है ना, वो 1950 के आसपास बननी शुरू हुई. So due to just lack of any treatment, these things came up more strongly. So आज भी जितना आप इंटीरियर्स में जाओगे, जितना आप थोड़े रूरल एरियाज में अंदर चले जाओगे, आपको पता चलेगा कि ये ट्रीटमेंट यूज़ हो रहा है. And surprisingly, a lot of people are also getting better on it. Because it is so culturally influenced. जो चीज़ मैंने बचपन से सुनी है, वो आप एक अडल्ट को आके बोलो ये सच नहीं है. How can they agree to it? True. A very highly cultural bias है इस चीज़ में. आपने तांत्रिक और बाबा का ट्रीटमेंट देखा कभी? Every day, hundreds of patients every day. क्या होता है उनके अंदर? Some of them to such a severe point that their tongues have been burnt with either coal or a very sharp object or a very hot object, to inflicting injuries on the body, to hitting them with the broom, or just isolating them with the family, or not giving them food and water for days, like basic starvation methods also. But they go on from very basic ones to just making them mute or like separating them from the family to even hitting them. So it varies, and you actually feel bad because it might just precipitate another issue.
कहा जाता है कि ऑल नीट फ्रीक्स हैव ओसीडी. Completely false. Today, everybody on the internet feels they have OCD because they like to keep their books a certain way. They like to keep their house clean. So, OCD, I would say, कुछ भी बोल दो और OCD is such a serious illness. It's such a sticky illness. I use this word again and again. It takes such a long time. It takes such regressive, such strong therapy and medicines. इतना आसान नहीं है. OCD is very, very sticky. All people exposed to trauma have PTSD. PTSD नो, ट्रॉमा की भी डेफिनेशन अलग अलग है ना कि किसके साथ क्या हुआ और क्या क्या लाइफ में हो सकता है. इनिशियली PTSD वॉर वाले वेटरन्स पे स्टडी किया गया था क्योंकि तब वही इतनी बड़ी चीज़ होती थी. जो वॉर से वापस आते थे उनको होता था वो वापस हेलुसिनेशन, उस ड्यूरेशन का पूरा सिनेरियो अपने माइंड में रन करना एंड दे वुड वेक अप विद स्वेटिंग एंड बीइंग फियरफुल. बट आज की लाइफ में ट्रॉमा भी तो चेंज हो गया. रोज़ कुछ ना कुछ अलग चीज़ को हम ट्रॉमा का नाम दे देते हैं. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ट्रॉमा हर जन अलग तरीके से प्रोसेस करता है. नॉट नेसेसरीली एवरीबॉडी विल गो ऑन टू डेवलप PTSD. Only wealthy people can afford helpful therapy. ये बहुत बड़ी मिथ है और ये पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई है. आई से दिस अगेन एंड अगेन, कम टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, द प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट एट ₹1. You get a good a qualified doctor sitting in front of you. They will take a good history, they will give you good medicines, and or therapies also start from ₹30 to ₹100. But आपको वहाँ जाना पड़ेगा. That the cost of it's going there because you cannot get that for ₹1 sitting in the comfort of your home. So yes, I would agree. In some places it is expensive, just like any other thing. In tier 1, like we discussed, the cab is also expensive, the food is also expensive. Hence the overall living cost goes up, hence therapy is also expensive over there. But no, therapy is available for everybody, but go out, reach help. थैंक यू सो मच डॉक्टर राशि. इट वॉज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन. मतलब मैं शायद बता नहीं पाऊँगा, बट इतनी बढ़िया बातें बताई हैं आपने, डेली रूटीन की बातें बताई हैं जो शायद हम सबको करनी चाहिए टू कीप आवरसेल्व्स मेंटली फिट. और अगर आज फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो मेंटल हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गाइज, आई होप आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई, बिकॉज मैं आज की कॉन्वर्सेशन का फ़ैन था. एंड मतलब मैं शायद बता भी नहीं पा रहा, बट आई एम वेरी हैप्पी विद टुडेज कॉन्वर्जेशन. और आप सबके लिए मैं सिर्फ एक एडवाइस देता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल कर अपने दोस्तों को कॉल करिए. उनसे सिर्फ ये पूछिए कि भाई या बहन तू ठीक है. ये 3 वर्ड किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं. और हमको नहीं पता कि कौन बाहर से मुस्कुरा रहा है बट अंदर से सिवियरली डिप्रेस्ड है. आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है. लोग मुस्कुराते हैं, लोग खुश होते हैं, लोग बातें करते हैं, बट अंदर से उनके कुछ अलग ही चल रहा होता है. सो बी दैट फ्रेंड हु कैन चेंज समबडीज़ लाइफ. एक ज़िंदगी बचाओ, बहुत कुछ मिलेगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए. जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको लगते हैं उनको सिर्फ भेजिए कि एक बार भाई देख ले, क्या पता उसके काम आ जाए. तो इस कॉन्वर्सेशन से अगर हम किसी को भी थोड़ा सा ही मदद कर सकते हैं तो आई थिंक आवर जॉब इज़ डन. और आप किसको चाहते हैं, कौन हमारा नेक्स्ट गेस्ट बने, कमेंट सेक्शन में बताइए हमें. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक आज के लिए हम इतना ही लाए हैं आपके लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर राशि. Thank you so much for bringing up such an important issue and talking about residents' mental health, which I think is one of the most underrated and under talked about topic. True. Thank you so much, guys.